So what is ROS? So you guys must have heard that ROS, all the buzz around it. So firstly, let me tell you what ROS is. ROS stands for Robotics Operating System. Okay. So whenever we hear any term related to operating system, we relate it to Windows, Mac OS, or Linux. Okay. But ROS is completely different. ROS is nowhere related to any operating system. Why it is called an operating system is because, see, what does Windows and Linux essentially do? They they in turn provide hardware abstraction. Let's say when you boot up your laptop, you have a keyboard, you have a mouse, and you have speakers and all that hardware. What Windows does is it integrates all that into your system. Okay, so basically it is abstracting hardware, it is initializing various files, it is initializing various directories. All that is done by Windows in your laptop. Similar thing ROS also provides, but for your specifically for your robots. ROS is not an operating system, it behaves like an operating system. Okay, so that is what ROS is and why it is important. So let's say it is a very opaque example. Let's say you have a warehouse, and in that warehouse you have 200 robots, 200 forklifts. Let's say, you know what a forklift is? That car type vehicle which is used to lift objects from one place to another. So let's say you have 200 forklifts, and they are automated forklifts, like they are robots. You have to somehow control those robots. Now, to control them, what you'll do is there is a method that you'll write a specific piece of code for each robot, and then you will run each code differently. Like तुमने एक रोबोट 1 का एक कोड रन किया, रोबोट 2 का एक कोड रन किया, रोबोट 3 का एक कोड रन किया, ऐसा तुमने 200 रोबोट्स का एक कोड रन किया, 200 कोड्स रन किया, एंड तुमने सारे 200 कोड्स 200 रोबोट्स कंट्रोल कर लिए. एक ही तरीका है. दूसरा तरीका हमको रॉस देता है. Okay, everyone is comfortable with Hindi and English both, or should I carry on in English? Comfortable in both. Perfect. So, हाँ, तो दूसरा मेथड रॉस प्रोवाइड करता है. रॉस क्या प्रोवाइड करता है? रॉस एक ऐसा इंटरफेस तुमको प्रोवाइड करेगा जिससे तुम सारे रोबोट्स एक प्लेटफॉर्म से एक कोड या एक कोई फाइल रन करके कंट्रोल कर सकते हो. अब ये तो एक बहुत ही सुपरफिशियल एग्जांपल था कि भाई तुम्हारे पास यू हैव 200 रोबोट्स. बट इफ यू डिग डीपर, व्हाट अ रोबोट नॉर्मली डज. रोबोट के 3 पार्ट्स होते हैं. देयर इज अ सेंसरी पोर्शन. इस पीपीटी में देखो तुम, देयर इज अ सेंसरी पोर्शन, देयर इज अ थॉट प्रोसेस पोर्शन, and there is an action process. So sensory, like all the sensors, let's say you are building an automated car, autonomous driving car. So in that you'll have this all these sensors, all these cameras, all these radar sensors, all these, this will be the sensory portion. It will sense the information from the surroundings. Then this sensory information will be passed on to the CPU of the car. Okay, since the CPU of the car or the whatever robot you are building, and then this CPU will process that information. Then the CPU, according to that information, it will produce another information. Okay, let's say car detected an obstacle at 5 meters. So the CPU will process that 5 meters distance and say, okay, 5 meters I have an obstacle, I need to push brakes. So this will pass that information to the action, let's say motors. Superficial example, let's say the CPU passes onto the motors. Okay, we have an obstacle at 5 meters, we need to stop it, we need to stop the car. So this will be the action portion. अब let's say you are integrating those sensors to a microcontroller. ठीक है, जो sensory portion में sensors थे, you are integrating them to a microcontroller. That means these basically microcontrollers work on embedded C language. Okay, so that means this information will be taken by the sensory uh, by the sensors and will be processed in C language. Okay, then let's say you have written your some ML programs, some ML code, machine learning code in Python. That now that C information, the information in C language needs to be transferred into Python. And then again, action will be in some other language, maybe in some other language, or maybe in those same languages. So you have to interface languages as well. So that will be very hectic if you do everything separately. That is where ROS comes in. ROS provides an interface ki bhai, okay, you are sensing, I'll provide you a package. What is a package essentially? Ki it is somewhat like a library. So ROS will provide a package for sensing.
ROS will provide a package for action, and it will provide a bridge between these two. So this is why ROS is important. Everything is clear till now? Okay, so if we come over to ROS development, so ये तो था ROS क्यों क्या है, ROS क्यों important है. Okay, all that is good, but how to do that? So those who are following robotics summer camp, you must be familiar with all these concepts, but let's brush them up. So what will happen is, let's say you are developing a robot. Okay, so very basic, from the very beginning, you have just installed your Linux in your laptop, you have just installed ROS into your laptop. Now you are starting your development of the robot. So what will happen is, firstly you will create a workspace. Okay, workspace बनाए, and this creation of workspace is not limited to ROS development. तुम कोई भी डेवलपमेंट करोगे, जैसे अभी तो तुम लोग पाइथन कोड, नॉर्मल पाइथन कोड या सी प्लस प्लस कोड लिखते हो, लेट्स से बहुत बेसिक कोड, लेट्स से स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स तुमने सी प्लस प्लस में लिखा, तो यू हैव रिटन दैट कोड, यू विल जस्ट रन दैट कोड यूजिंग द कंपाइलर एंड इट विल गिव यू द आउटपुट. ओके, डन. बट जब तुम कोई डेवलपमेंट प्रोसेस पे जाते हो, या तुम कोई प्रोडक्ट बनाते हो, या कोई लेट्स से एप्लीकेशन बनाते हो, या कोई रोबोट बनाते हो, तो तुम्हारे पास एक फाइल नहीं होती, यू हैव मल्टीपल फाइल्स. तो व्हाट अ वर्कस्पेस इज, तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, तुम एक एरिया बना रहे हो इन शॉर्ट अपने लैपटॉप में, कि ओके इस मेमोरी स्पेस में मैं अपना सारा काम करूंगा. तो दैट इज व्हाट योर वर्कस्पेस इज. तुम सबसे पहले अपनी वर्कस्पेस बनाओगे, ठीक है. उसके बाद तुम पैकेज क्रिएशन करोगे. लेट्स से तुमने रॉस अभी पढ़ना सीखा है, एंड you don't know what a package is, how to use a package, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता है. So what you will do is, you'll firstly create a package. अब package क्या होता है? Package is essentially your all the files relating to a particular component. Let's say तुम्हारे पास एक रोबोट है, उसमें एक सेंसर है. लेट्स से कोई भी सेंसर अगर हमारे दिमाग में आता है, लेट्स से लाइडार, भी मैंने बोला था लाइडार सेंसर है, ठीक है, या छोटा सेंसर ले लो, अल्ट्रासोनिक सेंसर है. तो अब अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है? व्हाट डज अल्ट्रासोनिक सेंसर डू इज, इट मेजर्स द डिस्टेंस एंड रिटर्न्स दैट डिस्टेंस टू सम फाइल. ओके, या जहाँ पे भी हम उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. अब इफ यू हैव एवर यूज्ड अल्ट्रासोनिक सेंसर, व्हाट यू विल हैव टू डू इज, यू विल code in Arduino. Let's say you are interfacing it with Arduino, you'll code in Arduino कि okay measure the distance with ultrasonic. But let's say तुम एक ऐसा एक generalized code भी तो बना सकते हो, जिसमें तुम जब जब उस कोड को यूज करो, वो तब तब तुमको डायरेक्टली अल्ट्रासोनिक की सेंसर की मतलब एक लाइन ऑफ कोड, एक तरह से एक फंक्शन कॉल करके तुम उसको अल्ट्रासोनिक सेंसर की डिस्टेंस मेजर कर सकते हो. यू कैन डू दैट. तो दैट इज व्हाट पैकेज प्रोवाइड्स यू. मतलब वो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के सारे फीचर्स तुमको प्रोवाइड करता है. अच्छा, ओके, राइटिंग नोड, व्हाट इज द नोड, मैसेजेस, सर्विसेज, रॉस लॉन्च फाइल्स, बिल्ड, ये भी बात करते हैं. तो लेट्स से तुमने पैकेज बनाया, तो पैकेज बना लिया, बट अगर तुमको सारे पैकेजेस बनाने पड़े, लेट्स से मैंने अभी अल्ट्रासोनिक का एग्जांपल दिया, लेट्स से यू हैव टू बिल्ड अ पैकेज फॉर अल्ट्रासोनिक, देन व्हाट गुड इज रॉस. बिकॉज अगर तुमको सारे कंपोनेंट्स के पैकेजेस खुद बनाने पड़ते हैं तो कोई मतलब नहीं है ना. इसलिए देयर आर मेनी पैकेजेस प्री इंस्टॉल्ड एंड मेनी पैकेजेस प्री बिल्ड जिनको तुम इंस्टॉल कर सकते हो. तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं. एक तुम सीडो ऐप गेट इंस्टॉल कर सकते हो. यहाँ पर जैसे रॉस काइनेटिक है इस यहाँ पर, तो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं नोएटिक वर्जन. मेलोडिक भी होता है, नोएटिक भी होता है, काइनेटिक भी होता है. तो रॉस, नोएटिक, जो भी पैकेज का नाम है वो. या तुम एक काम और कर सकते हो, वर्कस्पेस में जाकर SRC फोल्डर. अब अच्छा, वर्कस्पेस फाइल्स देख लो पहले. वर्कस्पेस फाइल्स, जैसे वर्कस्पेस में हो तुम, तो वर्कस्पेस में टोटल तुम्हारे पास 3 फोल्डर. कभी भी तुम वर्कस्पेस बनाओगे तुमको दिखेगा उसमें 3 फोल्डर होते हैं. एक होता है बिल्ड फोल्डर, एक होता है तुम्हारा डेवलपमेंट फोल्डर, एक होता है सोर्स फोल्डर. बिल्ड, डेवल, SRC, ठीक है. SRC में क्या होता है? SRC में तुम्हारे सारे पैकेजेस होते हैं. एक तरह से तुम्हारा समझ लो सोर्स कोड्स होते हैं, मतलब जिनको तुम, जो एक्चुअली में लॉजिक होता है वो तुम्हारा सोर्स फोल्डर में होता है. उसके बाद डेवलपमेंट में तुम्हारे क्या होता है? सारे हेडर फाइल्स, मैसेज की हेडर फाइल्स, उनके डिस्क्रिप्शंस, लाइब्रेरीज, वो सारी चीज़ें होती हैं. एंड बिल्ड में तुम्हारे बिल्ड के ऑप्शंस होते हैं. अब अच्छा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आई टोल्ड यू दैट व्हेन यू आर बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट, तो तुम्हारे पास ऐसा नहीं है एक फाइल हो, तुम्हारे पास मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं. तो उन मल्टीपल फाइल्स को तुम एक एक करके कंपाइल तो नहीं करोगे, यू विल कंपाइल देम ऑल एट वंस. तो दैट इज वेयर बिल्ड इज रिक्वायर्ड. सो you will build the whole project
which will compile all the files inside them. That is what build is. So अब that build requires various configurations that we'll talk अभी. अभी इसमें हम लोग को राइट नोड्स के बारे में बात करना है. We have to talk about messages, services and ROS launch files. We'll see. अभी बात करते हैं. यहाँ तक सबको क्लियर है? हेलो. हाँ भैया. ठीक है, क्लियर. तो नोड, व्हाट इज अ नोड? तो जैसे मैंने अभी बताया था ना तुमको कि तुम्हारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है, तुमने उसका एक पैकेज लिखा है. तो दैट अल्ट्रासोनिक सेंसर इज वन ऑफ योर नोड. और तुम्हारे पूरे रोबोट के सर्वर में, रोबोट के सर्वर इन द सेंस तुम्हारे पूरे रोबोट में तुम्हारे पास एक लैपटॉप होगा कंट्रोल करने के लिए, तुम्हारे पास एक रोबोट होगा, लेट्स से तुम्हारे पास एक और रोबोट है, उस रोबोट में एक सेंसर है तुम्हारे पास, या कोई ऐसा कंपोनेंट जिसको तुम कनेक्ट कर रहे हो. ऑल दीज थिंग्स आर योर नोड्स. जो भी कोई इन्फॉर्मेशन लेके भेज रहे हैं इधर से उधर, ऑल दोज थिंग्स आर योर नोड्स. ठीक है, नोड्स तुम्हारा बेसिक कंपोनेंट. नोड्स समझ में आ सको? हाँ भैया. ठीक है. अब लेट्स से मेरे पास एक नोड है. चलो मैं तुमको एक चीज़ कर कर दिखाता हूँ. सबको ये दिख रहा है टर्मिनल? टर्मिनल दिख रहा है? हेमंत, टर्मिनल दिख रहा है? हाँ हाँ दिख संजय रहा है. दिख रहा है. देखो, तो जब भी तुम रॉस को स्टार्ट करोगे, एक चीज़ होती है रॉस मास्टर. अच्छा, मास्टर जब तुम अभी आगे पढ़ोगे ना तो तुम लोग को कई जगह पर मास्टर स्लेव दिखेगा. तो मास्टर इन द सेंस होता है जो तुम्हारे एक पूरे कनेक्ट कम्युनिकेशन का मास्टर, मतलब जब भी तुम्हारे कोई दो चीज़ों या तीन चीज़ों या मल्टीपल चीज़ों के बीच में कम्युनिकेशन या कोई भी कनेक्शन होता है, तो उनमें से एक मास्टर होता है, बाकी सारे स्लेव्स होते हैं. तो मास्टर इन द सेंस वो होता है जिसके जो एक तरह से हेड होता है, तो ऐसे कह सकते हो, जो सब कुछ ओवरव्यू कर रहा है. ठीक है. तो तुम जब भी रॉस यूज करोगे तो यू विल हैव टू रन अ मास्टर. तुमको एक मास्टर चलाना पड़ेगा. उस मास्टर को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग रॉस कोर चलाते हैं. ठीक है. मैंने रॉस कोर चलाया तो पूरा रॉस कोर अभी स्टार्ट हो गया, यानी मास्टर स्टार्ट हो गया. यहाँ पर तुम देख सकते हो प्रोसेस मास्टर दिख रहा है सबको? ठीक है. हेलो, दिख रहा है ना? अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मैं एक नोड स्टार्ट करने जा रहा हूँ. नोड स्टार्ट करने जा रहा हूँ इन द सेंस, नोड क्या होगा, मैं एक कंपोनेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक तरफ का. ठीक है. तो नोड कैसे स्टार्ट करते हैं, मैंने कहा था रॉस रन, एक नोड रन करना है मुझे, रॉस रन टर्टल नोड जिस पैकेज में. अब नोड जो होंगे वो किसी पैकेज में होंगे. मैंने भी बताया कि तुम्हारा अल्ट्रासोनिक सेंसर का एक पैकेज होगा पूरा. क्लियर? तो नोड एक पैकेज में होंगे. तो नोड किस पैकेज में होंगे, लेट्स से पैकेज का नाम है टर्टल सेम. ठीक है. अब नोड का क्या नाम होगा, तो मुझे नहीं याद था नोड का क्या नाम होगा, तो मैंने दो बार टैब दबा दिया तो वो ऑप्शंस दे देता है. ठीक है. तो टर्टल सेम. ठीक है. देखो, सबको एक टर्टल दिख गया. ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, तुम कहीं पर भी ड्रॉ सीखोगे ये एग्जांपल तुमको दिया ही जाएगा. तुम सबको एक टर्टल विंडो दिख गई है ब्लू कलर की? हाँ भैया. ठीक है. अच्छा, कूल. अच्छा, देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने एक कोड चलाया एक नए टर्मिनल पे, रॉस नोड लिस्ट. तो इसने मुझे टोटल नोड्स लिस्ट कर दिया. एक नोड है अपना रॉस आउट, एक नोड है अपना टर्टल सिम. ये क्लियर है? अच्छा, टर्टल सिम तो मैंने अभी स्टार्ट किया, तुमने यहाँ देखा होगा. ये देखो, इस वाले टर्मिनल में मैंने क्या किया, रॉस रन टर्टल सिम नोड, यानी रॉस रन करो टर्टल सिम पैकेज का टर्टल सिम नोड. ठीक है. ये क्लियर? उसके बाद सबसे पहले मैंने रॉस कोर भी तो स्टार्ट किया था. अच्छा, रॉस मास्टर भी तो एक नोड होगा. रॉस मास्टर हवा में थोड़ी ना होगा ऐसे कहीं भी. रॉस मास्टर इज ऑल्सो अ नोड. सो रॉस मास्टर का एक रॉस आउट नोड होगा. तो दीज टू नोड्स आर रनिंग अभी. इतना सही है? हाँ भैया. हेलो, नोड सबको समझ में आया ना प्रॉपर्ली? कोई भी डाउट है नोड्स में तो पूछ लो अभी. एक बार रिपीट कर सकते हैं? एक बारी रिपीट. रिपीट. अच्छा, तो कहाँ से नहीं समझ में आया? मैंने यहाँ पर एक नया नोड रन किया. कैसे रन किया, मैंने कहा रॉस रन, मुझे एक नोड रन करना है. मैंने कहा रॉस रन नोड रन करो. कौन सा नोड भाई? नोड इज इनसाइड अ पैकेज. तो रॉस रन टर्टल सिम इज द नेम ऑफ द पैकेज. इनसाइड दैट पैकेज व्हाट इज द नेम ऑफ द नोड? टर्टल सिम नोड. परफेक्ट. ये नोड स्टार्ट हो गया. क्लियर? आई गेस क्लियर हो गया, तो विल मूव फॉरवर्ड. तो अब लेट्स से ये टर्टल सिम नोड एक है.
अब we'll go back to our ultrasonic example. तो लेट्स से तुम्हारे यू हैव वन रोबोट, उसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर एक नोड है, एंड यू हैव अ लैपटॉप विच इज एक्टिंग एज अ रॉस मास्टर. अब this ROS master and another you have one microcontroller which is your, let's say, one node. So you have nodes, ROS master node, microcontroller node, ultrasonic node. Perfect. Up this ultrasonic sensor will measure some distance and this will send that distance to the microcontroller. Okay. Hello. Clear? Now it will send this distance to the microcontroller. Up when it will send this distance, so it will send this distance in form of some data type sort of thing. ऐसा तो नहीं है बस हवा में कुछ भी मैसेज भेज दिया या डिस्टेंस बोल के भेज दिया, नहीं, इट विल सेंड दिस इन सम फॉर्म ऑफ डेटा टाइप. सो जब तुम इसको तुम रिलेट कर सकते हो फंक्शन कॉलिंग में, व्हेन यू कॉल अ फंक्शन इन C++ और पाइथन, तो यू पास सम डेटा टाइप्स विद इट कि ओके आई वांट अ रिटर्न टाइप एज इंट, I want a return type as integer, I want a return type as floating point. So that is what message type. So message is the type of information shared between the nodes. So that is what message is. अब मैसेज सबको समझ में आया क्या है? हेलो. हाँ भैया. ठीक है. हाँ, तो मैसेज सबको समझ में आया. अब लेट्स से मैसेज हो गया. अब यहाँ पर पीछे तुम लोग को दिख रहा है टॉपिक. टॉपिक क्या है? एक सेकंड. Okay, what is topic? So let's say अभी we were talking about ultrasonic sensor. अब let's say we have a robot, उसमें ultrasonic है, lidar भी है, उसमें infrared sensors भी है, and all these different sensors in one robot. Let's say robot का नाम है something Mark Zuckerberg. Let's say Mark Zuckerberg is the name of the robot, and that robot has multiple sensors inside it. So अब all these sensors will send data to some different node. Now what I'll tell the robot is, भाई I want turtle sim 1 का एक रोबोट, टर्टल सिम तो मैंने गलत बोल दिया, मार्क जुकरबर्ग नाम का एक रोबोट है, उसका मुझे लाइडार सेंसर का डेटा चाहिए. मुझे अल्ट्रासोनिक का नहीं चाहिए, मुझे इंफ्रारेड का नहीं चाहिए, मुझे लाइडार का चाहिए. तो लाइडार एक तरह से मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ ना, मुझे एक चीज़ के बाद एक सेंसर का डेटा चाहिए. तो दैट इज व्हाट टॉपिक इज. एक रोबोट का कौन सा डेटा तुमको चाहिए, दैट इज व्हाट इज सिग्निफाइड बाय टॉपिक. तो यानी लेट्स से अगर बातों में बात करें, तो अगर दो रोबोट हैं एक दूसरे से बात करें या दो नोड्स हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये किस टॉपिक के ऊपर डेटा एक्सचेंज करेंगे या किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, उसको टॉपिक कहते हैं. ये सब टॉपिक समझ में आया? हाँ भैया. ठीक है, टॉपिक समझ में आया. ओके, टॉपिक भी समझ में आ गया. अभी ये सब करके भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा तो नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है, बट थोड़ा थोड़ा कर देखेंगे इसको. तो उसके बाद आता है पब्लिशर सब्सक्राइबर. अच्छा, पब्लिशर सब्सक्राइबर क्या है? लेट्स से जो हम लोग का ऑटोनोमस ड्राइविंग वाला एग्जांपल था, उसमें द लाइडार सेंसर सेंस द डेटा या अल्ट्रासोनिक सेंसर सेंस द डेटा एंड इट गिव्स दैट डेटा टू योर CPU एंड सब कम्युनिकेशन हो रहा है, रॉस से बढ़िया कम्युनिकेशन हो रहा है. नाउ जो डेटा भेजता है, यानी जो डेटा भेज रहा है, सेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर पब्लिशर. वो डेटा पब्लिश कर रहा है, दैट इज योर पब्लिशर. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पब्लिशिंग ऑफ डेटा, पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. अच्छा, डेटा पब्लिश कहाँ होगा? डेटा पब्लिश एक टॉपिक पे होगा. यार मुझे लेट्स से मार्क जुकरबर्ग के लाइडार को या मार्क जुकरबर्ग के रोबोट को ये डेटा, मार्क जुकरबर्ग के मोटर को ये डेटा पब्लिश करना है. ठीक है, यानी मार्क जुकरबर्ग के मोटर को मुझे ये बताना है तुम 200 RPM पे घूमो, you rotate at a speed of 200 RPMs. I have to publish the data to Mark Zuckerberg robot on the topic motor. Perfect. Publisher समझ में आया? और भी लोग बोलो यार. I guess ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? Am I going too fast? सही भैया, समझ आ रहा है. ठीक है. Okay. So publisher, if you got the hold on publisher, then subscriber, you can get the hold on subscriber
like that only कि subscriber is opposite of publisher we are publishing this information, subscribing we are subscribing to this information. let's say मैंने डेटा पब्लिश तो कर दिया, अब यार मैंने हवा में ऐसे बॉल फेंक दी, जब तक कोई कैच करने वाला नहीं होगा तो बॉल तो ज़मीन पर गिर जाएगी ना. तो सब्सक्राइबिंग इज सब्सक्राइबिंग टू अ पर्टिकुलर टॉपिक कि ओके इस पर जब कोई डेटा आएगा तो आई टेक दिस. तो we'll have to write down some code कि that डेटा विल मतलब दोनों जगह एक एंड से दूसरी जगह पहुंच जाए. ठीक है, ओके ये एक चीज़ हो गई. एंड फिर उसके बाद सब्सक्राइबर समझ जाएगा, पब्लिशर समझ जाएगा. अच्छा चलो देखो, मैंने इसमें एक डेमो करते हैं. देखो मैंने इसमें क्या किया था, मैंने टर्टल सिम नोड चलाया था. ठीक है, अभी कौन सा नोड चल रहा है, रॉस नोड लिस्ट हम लोगों ने देखा, टर्टल सिम और एक रॉस कोर. रॉस कोर तो हमेशा चलता रहता है जब जब रॉस कोर चलाते हैं, रॉस मास्टर. एक टर्टल सिम चल रहा है. अब मैं एक और नोड चलाने जा रहा हूँ. नोड कैसे चलाते हैं, रॉस आई हैव टू रन अ नोड, तो रॉस रन. कौन से पैकेज में नोड है, टर्टल सिम में. ठीक है, क्या नोड का नाम है, टर्टल. अब मुझे नहीं आता तो टर्टल टेली ऑफ की. ठीक है, अब एक और नोड चल गया. ठीक है, क्या लिख के आ रहा है, यूज एरो कीज टू मूव द टर्टल. अच्छा ठीक है, मैं एरो कीज यूज कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड में. यू कैन सी द रोबोट, यू कैन सी द टर्टल मूविंग राइट. हाँ भैया. सो अभी क्या हो रहा है, लेट्स सी, एक बार देखते हैं मैंने क्या किया. अब मुझे पहले तो ये देखना है टॉपिक्स कौन कौन से चल रहे हैं. टॉपिक्स क्या थे, कोई बताएगा मुझे. रॉस Hello? आउटर टर्टल सिम. हाँ टॉपिक्स, रॉस वो रॉस नोट्स थे, टॉपिक नहीं था वो. रॉस टॉपिक अभी तक नहीं देखे हम लोग. कमांड वेलोसिटी CMD अंडरस्कोर वेल होगा एक तो. ओके ओके, वो मतलब तुमको याद है इसलिए. तो रॉस टॉपिक लिस्ट मैंने जब भी मुझे कुछ भी करना है तो मैंने उसका नाम लिखा एंड आगे लिस्ट कर दिया, वो दिखा देगा कितने चल रहे हैं. तो अभी देखो रॉस टॉपिक लिस्ट में क्या क्या चल रहा है. रॉस आउट अंडरस्कोर AGG, ये दोनों रॉस कोर के होते हैं. ये दोनों तुम कभी भी रॉस कोर चलाओगे दिस विल रन बाय डिफॉल्ट. उसके बाद टर्टल 1 कमांड वेलोसिटी, टर्टल 1 कलर सेंसर, टर्टल 1 पोज. अच्छा जब मैंने टर्टल सिम रोबोट रन किया था तो इसमें देखो लिख के क्या आया था, यहाँ पर स्पॉनिंग टर्टल एट थीटा थीटा एरर है. ठीक है, टर्टल यहाँ पे स्पॉन हुआ था. उसके बाद तुम यहाँ पर देखो, इस टर्टल का बाय डिफॉल्ट नाम होता है टर्टल 1. ठीक है, तुम अगर उसको नाम नहीं देते हो तो उसका बाय डिफॉल्ट नाम होता है टर्टल 1. तुम दोबारा एक और स्पॉन करोगे तो उसका नाम होगा टर्टल 2, एक और स्पॉन करोगे उसका नाम होगा टर्टल 3, एक और स्पॉन करोगे टर्टल 4, ऐसे चलता जाएगा. अच्छा टर्टल 1 का एक टॉपिक है कमांड वेलोसिटी. टर्टल 1 रोबोट का नाम है, उसका टॉपिक है कमांड वेलोसिटी. टर्टल 1 रोबोट का नाम है, उसका टॉपिक है कलर सेंसर. टर्टल 1 रोबोट का नाम है, उसका टॉपिक है पोज. ठीक है, ये हमारे टोटल रॉस टॉपिक लिस्ट हो गए. ठीक है, अच्छा अब मैं एक कमांड होता है रॉस टॉपिक लिस्ट -v. तो इसमें -v अगर तुम लगा देते हो तो दिस शोज टोटल पब्लिश एंड सब्सक्राइब टॉपिक्स डिफरेंटली. मतलब पब्लिश टॉपिक्स अलग से, सब्सक्राइब टॉपिक्स अलग से. तो इसमें देखो टर्टल 1 पोस्ट का एक पब्लिशर है, ये जो तुम्हारा रोबोट है. ठीक है, टर्टल 1 कलर सेंसर का एक पब्लिशर है, तुम्हारा टर्टल है. टर्टल 1 कमांड वेलोसिटी का एक पब्लिशर है, टर्टल. एंड टर्टल 1 कमांड वेलोसिटी का एक सब्सक्राइबर है, जो जब तुमने ये नहीं टर्टल 1 कमांड वेलोसिटी का पब्लिशर अपना ये जो टेलीऑप नोड चलाया था, यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर रहे थे ना वेलोसिटी, रोबोट को मूव करा रहे थे, तो अभी मूव कर रहा हूँ मैं. ये समझ में आया कि कौन सा सब्सक्राइबर है कौन सा पब्लिशर है. ये शायद से नहीं आया होगा, तो नहीं आया तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स. कितने लोगों को पब्लिशर सब्सक्राइबर नहीं समझ में आया अभी इस एग्जांपल के थ्रू. नहीं आया, रिपीट इट. ठीक है, ओके चलो मैं रिपीट कर देता हूँ. देखो मैंने कमांड चलाया, ओके कमांड से मतलब नहीं है, कमांड चलाया, उसने ये दिखा दिया पब्लिश टॉपिक्स, सब्सक्राइब टॉपिक्स. ठीक है, रॉस आउट अंडरस्कोर AGG एंड रॉस आउट मैंने बोला ये रॉस कोर के होते हैं, यू नीड नॉट वरी अबाउट देम. तुमको वरी किन के लिए करना है, टर्टल 1 स्लैश पोस्ट, टर्टल 1 स्लैश कलर सेंसर, टर्टल 1 कमांड वेलोसिटीज. ठीक है, ओके अब ये अपना रोबोट है ब्लू कलर में, ब्लू कलर बैकग्राउंड में टर्टल अपना रोबोट है. दिस रोबोट हैज सम कलर
दिस रोबोट हैज अ पर्टिकुलर पोज, पोज इन द सेंस एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एंड इट्स एंगल, ठीक है, इसका एक पोज है, एंड इस रोबोट की एक वेलोसिटी है, दैट इज योर कमांड वेलोसिटी, ठीक है। इस रोबोट, दिस रोबोट हैज अ कलर, दिस रोबोट हैज अ कमांड वेलोसिटी, दिस रोबोट हैज अ पोज. सो नाउ दिस रोबोट will tell what pose it has, okay, ठीक है. This robot will tell what color it has, but इस रोबोट को हमें बताना पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी क्या हो. So if this robot is telling what pose it has, यानी this is publishing this information what pose it has. Clear? Hello. हाँ भैया। If this is telling what color, what pose or what color it has, that means this is publishing this information. So that means इसका एक publisher है, pose का एक publisher है, color का एक publisher है. अब जो अपने टेलीऑप नोड चलाया था, जिससे हम लोग ये रोबोट कंट्रोल कर रहे थे एरो कीज से, ये वाला नोड था ना अपना टेलीऑप, याद है सबको, ये टेलीऑप नोड था, इससे हम लोग रोबोट कंट्रोल कर रहे थे. तो दिस वाज द पब्लिशर ऑफ वेलोसिटी, दिस वाज टेलिंग द रोबोट कि तुम इतनी वेलोसिटी, शशांक प्लीज म्यूट योरसेल्फ. दिस वाज टेलिंग द रोबोट, दिस टेलीऑप नोड वाज टेलिंग द रोबोट तुम कितनी वेलोसिटी से मूव करो, एट व्हाट वेलोसिटी यू नीड टू मूव. So that means this teleop node was the publisher. Okay, यानी कमांड वेलोसिटी का भी एक पब्लिशर, एंड कमांड वेलोसिटी को सब्सक्राइब कौन कर रहा था, रोबोट. रोबोट को पता चल रहा था कि ओके मुझे आई हैव टू मूव एट दिस वेलोसिटी. ऑलराइट, यानी उस कमांड वेलोसिटी का एक सब्सक्राइबर हुआ. कूल, सबको समझ में आया? अब कितनों को नहीं समझ में आया? आई गेस अब आ गया होगा. अब आ गया होगा. अगर किसी को नहीं आया तो वो हैंड रेस कर सकता है. किशन तुम्हारा हैंड रेस है, नहीं समझ में आया तुमको? पहले से ही हैंड रेज हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, समझ में आया. अच्छा, अब आ गया ना सबको? तो आई गेस विल मूव फॉरवर्ड. अब तो देखो, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है. अब अपन ने क्या क्या बात कर ली? वी हैव टॉक्ड अबाउट नोट्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट मैसेजेस, वी हैव टॉक्ड अबाउट echo, we have talked about topic, we have talked about publisher, we have talked about subscriber. अब सर्विस एक्शन वी हैव टू टॉक. उससे पहले एक चीज और देख लो, ये इसमें देखो, लेट्स से, अरे लेट्स से मुझे इस रोबोट पे एक वैल्यू पब्लिश करनी है खुद से, मैं खुद पब्लिश करूंगा, ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा रॉस टॉपिक, मतलब मुझे एक टॉपिक पे बात पब्लिश करनी है, तो रॉस टॉपिक पब्लिश, मतलब चलो मुझे नहीं पता रॉस टॉपिक से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो आई जस्ट प्रेस टैब ट्वाइस, ठीक है. तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है कि आई कैन डू BW फॉर बैंडविड्थ, एको, फाइंड, HZ, इन्फो, लिस्ट, पब, टाइप. लिस्ट हम लोगों ने देख ही लिया, तो पब मतलब पब्लिश. तो आई रॉस टॉपिक पब्लिश, पब्लिश किस पे पब्लिश, तो मैंने फिर टैब दबाया, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है. तो अब इसमें देखो टोटल रॉस टॉपिक्स आ गए. कौन कौन से टॉपिक थे अपने? सारे टॉपिक्स आ गए. तो मुझे कमांड वेलोसिटी पब्लिश करनी होगी. आई हैव टू मूव 2019 World's Strongest Man Martins Lacy's had a similar issue. It was affecting his back squat, having to take a very wide Krishnan grip to not have Chaudhary, full- please mute yourself. assessing his right shoulder. ओके, अब मैंने रॉस टॉपिक पब्लिश किया है. हाँ उसका क्या, हाँ रॉस टॉपिक पब्लिश, ठीक है. पब्लिश करना है किस टॉपिक पे? सो आई राइट ऑन द नेम ऑफ द टॉपिक, टर्टल. ओह नो 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 नो, व्हाट इज दिस, रॉस टॉपिक, ठीक है. रॉस टॉपिक पब टैब टर्टल, टर्टल 1 रोबोट के कमांड वेलोसिटी टॉपिक पर आई हैव टू पब्लिश, ठीक है. ज्योमेट्री मैसेजेस, मैसेजेस का जो पैकेज है, जो जिस टाइप डेटा टाइप के मैसेजेस मैं पब्लिश करूंगा, वो ज्योमेट्री मैसेजेस पैकेज में है. एंड उसमें एक ट्विस्ट मैसेज होता है, एक टाइप का पैकेज का नाम और कौन सा मैसेज है, ट्विस्ट, ठीक है. ये एक चीज. उसके बाद ये मैंने फिर से टैब दबाया क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स देने होते. दिस इज जस्ट लाइक गिविंग आर्ग्यूमेंट्स इन अ फंक्शन. जब तुम फंक्शन कॉल करते हो, यू हैव टू गिव सम आर्ग्यूमेंट्स. मुझे नहीं पता था उस फंक्शन के क्या आर्ग्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स है. मैंने 2 बार टैब दबाया तो उसने मुझे एम्प्टी दे दिया. अब मैं बटन से जाकर वो कर सकता हूँ,
चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे नीचे एकदम y एक्सिस में नीचे लाना है, व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव अ वेलोसिटी ऑफ -2 z में, सॉरी y एक्सिस ऐसे है ना, ठीक है। तो तुमको y कोऑर्डिनेट मिल गया इसके लिए, एंड ये रोबोट के रेफरेंस में होता है। देखो रोबोट पहले ऐसे, मतलब जो टर्टल था वो इस साइड फेसिंग था, तो उसके लिए y एक्सिस ऐसे ऐसे थी। अभी टर्टल ऊपर फेसिंग था, तो उसके लिए y एक्सिस ऐसे ऐसे हो गई, ठीक है। तो दिस मूव इन दिस डायरेक्शन, ओके। एंड इसके जो 3 आर्गुमेंट्स है x y z, तो तुम्हारे x y z के अक्रॉस मोशन, एंड फिर ये तुम्हारे एंगुलर वेलोसिटीज है। एंगुलर वेलोसिटीज हैं जब तुमको रोटेशन अबाउट एक्सिस देखना होता है, जैसे ड्रोन्स वगैरह में यू हैव टू सी द रोटेशन अबाउट एक्सिस ना, तो दैट इज योर एंगुलर वेलोसिटीज अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये मैंने पब्लिश किया, रोबोट मूव किया। इतना सबको देखा, इतना समझ में आया? हाँ भैया। ओके ठीक है। एंड पता समझ आया, मैं कंट्रोल, अच्छा इसमें इसने पब्लिश एंड लैच कर दिया। मतलब व्हाट इट डिड वाज, इसमें तुम यहाँ पर देखो पब्लिशिंग एंड लैचिंग मैसेज, प्रेस कंट्रोल प्लस सी टू टर्मिनेट। तो पब्लिश एंड लैचिंग व्हाट मींस इज कि मैंने जब ये पब्लिश किया मैसेज, तो ये मैसेज कम्युनिकेशन में है। कोई भी नोड जब आएगा, बाद में भी लेट से जनरेट होता है कोई नोड, जो कमांड टर्टल 1 के कमांड वेलोसिटी टॉपिक को सब्सक्राइब करेगा, उसको ये वेलोसिटी मिल जाएगी। लैच है ये मैसेज, जब तक मैं एंड नहीं करूंगा। मैं एक और टर्टल सिम अगर अभी बनाता और उसको चलाता तो वो भी चल जाता, ओके। मतलब अगर मैं टर्टल सिम बाद में भी चलाता, जैसे मैंने टर्टल सिम पहले बना के रखा हुआ था, उसको मिला, उसने ले लिया, अगर मैं टर्टल सिम बाद में भी चलाता तो वो हो जाता, ठीक है। फिर उसके बाद अभी क्या हो गया ये माउस को, ठीक है। और इसको तुम वन टाइम भी पब्लिश कर सकते हो। लेट्स से तुमको एक ही बार पब्लिश करना है, 3 सेकंड्स के लिए वो पब्लिश करेगा। उसके लिए सिंटैक्स समथिंग लाइक, आई डोंट रिमेंबर, क्रॉस टॉपिक अब -1 होता है शायद, -1 होता है। टर्टल कमांड, आई डोंट रिमेंबर द सिंटैक्स अभी इसका वन टाइम का पब्लिश का, बट लेट्स ट्राई। एक्स में लेट्स से मुझे -3 मूव कराना है, हाँ माइनस माइनस ट्रिपल टाइम वन लगा दिया। चलो सॉरी, एक सेकेंड रुको, मैं इसको करता हूँ पब्लिशिंग फॉर 3 सेकेंड्स। देखो इसने 3 सेकेंड्स बंद किया एंड हो गया, खत्म हो गया, नोट अपने आप बंद हो गया। मैंने कंट्रोल सी नहीं दबाया, एक बार चला 3 सेकेंड्स के लिए, बंद हो, पब्लिशिंग बंद हो गई, ठीक है। ओके, ये इतना सबको पब्लिशिंग समझ में आया ना अभी? अच्छा एक चीज़ और है, ये अच्छी चीज़ है, इससे एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी। जैसे लेट्स से मैंने कमांड वेलोसिटी पब्लिश किया, यार एक और टॉपिक भी तो रनिंग था जब टर्टल सिम रन था। कहाँ है वो टॉपिक लिस्ट वाला? अगर तुम देखो ऊपर, तो देखो एक पोज भी तो रनिंग था, एक कलर सेंसर भी रनिंग था। पोज जब रनिंग था तो यार मैं पोज भी तो पब्लिश कर सकता हूँ, कि नहीं कर सकता हूँ? रॉस टॉपिक पब्लिश करूंगा मैं, क्या पब्लिश करना है? नोड का नाम, नोड पैकेज का, रोबोट का नाम, नोड का क्या नाम है, पोज में पब्लिश करना है, ठीक है। टैब दबाऊंगा, मैं देखूंगा क्या आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो देखो पोज क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एंड उसका थीटा, उसकी लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, परफेक्ट। ये मैं अगर यहाँ पर वैल्यू डाल दूँ तो ये पब्लिश हो जाना चाहिए ना? हेलो, हाँ भैया। होना चाहिए। तो अभी मैंने 2x एक्सिस 2y एक्सिस, यानी अब ये 2 पर चला जाना चाहिए नोड, ठीक है। लॉजिकली मैंने पब्लिश कर दिया मैसेज, नोड चला जाना चाहिए। अब व्हाट इट इज सेइंग, पब्लिशिंग एंड लैचिंग मैसेज, प्रेस कंट्रोल सी टू टर्मिनेट। बट यहाँ टर्टल सिम में कुछ नहीं हुआ, टर्टल सिम में कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि टर्टल सिम जो था, तुमको मैंने यहाँ पर दिखाया था, जब टॉपिक्स पब्लिश थे तो टर्टल सिम पोस्ट पब्लिश कर रहा था, बट टर्टल सिम ने कभी पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया। दिखा क्या हुआ? मतलब मैंने यहाँ से अभी ये स्टेटमेंट डाल के एक मैसेज पब्लिश कर दिया पोस्ट का, बट देयर इज नो वन टू सब्सक्राइब टू दैट मैसेज। मैंने बॉल फेंक दिया हवा में, बट नो वन इज देयर टू कैच इट। अभी वो लैच्ड है वहां पर। मैं बाद में कोई ऐसा सब्सक्राइबर लिखता हूँ लेट से,
जो इसको सब्सक्राइब करेगा दैट विल बी यू नो उसको वो पोस्ट मैसेज मिलेगा 2,2 का। ये समझ में आया सबको? ये दिखा? हाँ भाई। किसको नहीं दिखा ये? किसको नहीं दिखा? एनीवन जिसको नहीं दिखा he or she can raise the hands. चलो ओके, देख गया मतलब, ठीक है। तो इसके बारे में बात हो गई। अब अच्छा एक सेकेंड, हाँ, तो दिस वाज ऑल अबाउट टॉपिक, पब्लिशर, सब्सक्राइबर। अब देर आर डिफरेंट वेज एज वेल। जैसे टॉपिक में क्या हुआ, one node published an information, another node subscribe to that information. बट हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम मैसेज पब्लिश करके डाल दिया है हमने एंड समवन इज सब्सक्राइबिंग इट टू इट। इट्स नॉट रिक्वायर्ड एवरी टाइम। समटाइम्स आई रिक्वायर कि ओके जब मुझे चाहिए हो देन आई विल रिक्वेस्ट द इन्फॉर्मेशन। लेट्स से मैं एक नोड हूँ एंड मेरे बगल में एक एक्स बंदा है, उसको वो एक नोड है, दैट एक्स बंदा ओनली रिक्वायर्स इन्फॉर्मेशन एट सम पर्टिकुलर टाइम, तो इट विल request me that information, okay send me this information and I'll respond to it. तो that is where service comes in. उसको एक information request करता है एंड उसके बाद काम होता है। एक्शन उससे एक और डिफरेंट मेथड है कि यार सर्विस तो तब था कि मैंने रिक्वेस्ट किया, एक्शन तब होता है यार जब लेट्स से यू हैव लॉन्गर पीरियड्स ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशंस कि यू डोंट नो कितनी देर में रिस्पॉन्स आएगा। मतलब तुमने अभी बोला, हो सकता है 10 मिनट बाद रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसके लिए फीडबैक रिक्वायर्ड होता है कि मतलब कंफर्मेशन रिक्वायर्ड होता है कि ओके हाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ओके तुमने कमांड वेलोसिटी वाली मांगी, मुझे मिल गई। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो टॉपिक, ये सर्विसेज, ये सब्सक्राइबर। टॉपिक में क्या हुआ, देयर इज अ पब्लिशर, देयर इज अ सब्सक्राइबर। टॉपिक में क्या हुआ, एक पब्लिशर है, डिफरेंट सब्सक्राइबर्स। हाँ ये भी हो सकता है, एक पब्लिशर कई सारे सब्सक्राइबर्स को वही सेम टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन देयर इज सर्विसेज। सो सर्विसेज में यू कैन सी एक सर्वर है, एक क्लाइंट है। सर्वर ने एक सर्विस रिक्वेस्ट करी और फिर सर्वर ने उस सर्विस पर रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। यहाँ पर वही एक एक्शन में डिफरेंट है कि एक्शन ने सर्वर को बोला कि यू डू दिस टास्क फॉर मी एंड सर्वर ने काम किया, डिड दोस टास्क एंड कंफर्म किया, ओके वर्क डन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टॉपिक, सर्विस एंड एक्शन। तुम लोग समर कैंप की रेपो फॉलो करना, उसमें कैसे यूज करते हैं कैसे। एंड अभी एक लेक्चर, एक कोर्स भी है अनीस काउबा का, इफ समवन वांट्स इट, यूडेमी पे है वो कोर्स। इफ समवन वांट्स इट, मेरे पास जिप फाइल है, मुझे मैसेज करना, मैं जिप फाइल ट्राई करूंगा, वो बड़ी है बट मैं ट्राई करूंगा अगर वो पहुंच जाए। उसमें यू कैन गेट द आइडिया ऑफ हाउ टू राइट नोट्स, अगर इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ टाइम एंड इफ यू want to invest that kind of time into writing all the nodes and all the publisher subscribers from very scratch, so I'll give you that course. And फिर ये बेसिक है एंड दिस इज द बेसिक वर्किंग। ये जो साइड में ये वाला चार्ट है, यू सी देयर इज अ रॉ स्कोर, रॉस मास्टर। एक पब्लिशर स्टार्ट किया मैंने, एक सब्सक्राइबर स्टार्ट किया। अब इस पब्लिशर ने रॉ स्कोर को बताया कि आई एम अ पब्लिशर, आई विल पब्लिश अ कमांड वेलोसिटी मैसेज, ओके। इस सब्सक्राइबर ने रॉ स्कोर को बताया, ओके I need a command velocity, I'll subscribe to command velocity, I need a command velocity message, okay। रॉस्कोर ने फिर उसको बताया, ओके मेरे पास एक पब्लिशर भी है इस चीज का। सब्सक्राइबर को रॉस्कोर ने बताया आई हैव अ पब्लिशर एज वेल। उसने सब्सक्राइबर नोड इन्फो लिया, पब्लिशर नोड इन्फो उसको दिया एंड ही टोल्ड हिम कि आई हैव दिस वन। सो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने लगा, ओके। सो ये हो गया, ये हो गया सर्विस। अब जैसे एक चीज मैं बोल रहा था, ये लास्ट चीज है, इसके बाद हेमंत विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। सो लेट्स से अभी मेरे पास एक ये वो था, अब मुझे एक रॉस सर्विस कॉल करनी है। रॉस सर्विस मैंने डाला, रॉस सर्विस, मैंने टैब दबाया, मेरे पास ऑप्शन है, मुझे कॉल करनी है रॉस सर्विस। तो मैंने कॉल किया, कितनी सारी सर्विसेज आ गई मेरे पास, बहुत सारी सर्विसेज आ गई। तो लेट्स से मुझे एक नया टर्टल बनाना है इसी के अंदर। तो एक सर्विस मुझे दिख रही है यहाँ पर स्पॉन के नाम से, तो मैं स्पॉन कर दूंगा, ठीक है। अब मैं स्पॉन का मुझे नहीं पता क्या आर्ग्यूमेंट्स लेता है स्पॉन, तो मैं 2 बार टैब दबाऊंगा। तो देखो एक्स वाई थीटा एंड नेम। एक्स वाई का मतलब
at what coordinate I want the ROS service to spawn that another turtle, and theta means उसका कितना angle होगा, and name means उसका नाम क्या होगा. So let's say मैं 5 कर देता हूँ, 5,5 पे I want to spawn this turtle, and let's say उसका मुझे एंगल 90 डिग्री रखना है, तो मैं 5/2 करूँगा, तो 5.57, एंड टर्टल का नाम लेट्स से मैं संचित रख देता हूँ. तो नाउ आई एंटर दिस. देखो 1.56 नॉर्मल एक टर्टल 90 डिग्रीज ऐसे आता है, इधर फेसिंग. मैंने उसको 90 डिग्री दिया ऊपर फेसिंग संचित नाम के साथ. एंड अब अगर मैं रॉस टॉपिक लिस्ट करूँ, तो देखो संचित के कमांड वेलोसिटी, संचित कलर सेंसर, संचित पोज, यानी संचित रोबोट का कमांड वेलोसिटी, संचित रोबोट का कलर सेंसर, संचित रोबोट का पोज, ये सब आ गया. तो दिस वाज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. अगर इसको मैं अभी किसी को डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज हेमंत विल कैरी ऑन टुवर्ड्स mapping and everything. ROS packages. Your ROS packages and creation of ROS packages and files. You can see this. Basically, but a package banana hoga, so you'll need to go through these commands, and all this is given in the summer camp git repo. Hemant? Yes, Sanjay. So I guess you should take over. हाँ लाइक किसी को डाउट से तो एक बार पूछ लो, उसके बाद मैं टेक ओवर कर लूँगा. If someone has any doubts, please ask, because I'm actually outside, so I'll be leaving. I'm in the lab, so I'll be leaving in some time. If you have any doubts, ask them right now. Anyone? समझ में नहीं आया क्या? आया भैया. Maybe किसी को नहीं आया तो you can ask the doubts. Otherwise, he will take over. ओके सर. Okay, Hemant, I'll leave. एक सेकंड. हमारी स्क्रीन विजिबल है? हाँ Hemant, visible है. ओके. आई गेस नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा. यस. प्रेजेंट. सो तो लाइक आई गेस मैं फुल स्क्रीन तो पहले नहीं कर पाऊंगा, तो लाइक मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, सो लाइक संजीत ने बता दिया था हमें लाइक कि एक पैकेज को लाइक हम कैसे क्रिएट करते हैं, पैकेज में लाइक क्या क्या होता है. तो फिर लाइक बेसिकली जब हम क्रॉस में कोई लाइक पैकेज बनाते हैं, तो उसमें लाइक बेसिकली ये होता है SRC, build और devel फोल्डर. ठीक, तो जो भी हम ना बाकी के जो भी पैकेजेस हमें बनाने होते हैं, तो हम उसे SRC में बनाते हैं. लाइक ओके, फॉर एग्जांपल लाइक पैकेज 1, पैकेज 2 ऐसे पैकेजेस हम SRC में रखते हैं. ठीक, एंड व्हाट डज दिस पैकेज कंटेन्स. तो पैकेज में लाइक बेसिकली बहुत सारे इंक्लूड कर सकते हैं हम. लाइक ये जो CMaker लिस्ट है, और जो पैकेज XML जो है ये अपने आप बनते हैं. लाइक जब हम कैटकिन मेक करते हैं या कैटकिन बिल्ड करते हैं, तो लाइक ये 2 फाइल्स अपने आप बन के आती हैं. ठीक, उसके बाद में जो भी हम ये सब फोल्डर्स बनाते हैं, लाइक इसे हम इसी नाम से लिखते हैं, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है. और लाइक तुम कहीं पे भी लिख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. बट
एक सेपरेट फोल्डर्स में लाइक अगर हम बना के लिखते हैं हर सभी चीज़ें को, लाइक स्क्रिप्ट जो भी हो गई, जैसे भी पाइथन की स्क्रिप्ट हो गई, जो .sh की स्क्रिप्ट हो गई, उसे लाइक हम स्क्रिप्ट्स में लिख लेते हैं, मैसेजेस को मैसेजेस के अंदर, और उसके अंदर भी अगर हमें कोई सब पैकेजेस चाहिए या फिर कोई नोट लिखनी है तो उसको हम उसके अंदर वाले SRC में लिखते हैं। लॉन्च फाइल्स जो भी हम बना रहे हैं उससे एक सेपरेट लॉन्च फोल्डर बना लिया, उसमें हम लॉन्च फाइल्स लिखते हैं। ठीक, तो बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक पैकेज का। तो बस यही था। और लाइक अगर हमें कोई पैकेज को लाइक क्रिएट करना हो तो मैं तुम्हें जनरली एक पैकेज को क्रिएट करके बता देता हूँ। सो लाइक मैं होम में एक पैकेज बना रहा हूँ, ये वाला कैटकिंग क्रिएट पैकेज से लाइक ऐसी ऐसा जरूरत भी नहीं होता है। ऐसे कर सकते हैं हम कि मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। मान लो कि किस नाम से लगा दूँ, मैं XYZ नाम से एक डायरेक्टरी बना दी मैंने, और उसमें मैं CDX XYZ में जाके उसमें मैं एक डायरेक्टरी SRC कर रहा हूँ। ठीक, मतलब एक हमारे यहाँ पे अब ये बन रही है कि SRC वाला एक फोल्डर बन गया इस वाले में। ठीक, और बेसिकली हम करते क्या है कि हर टाइम ये वाला जो कैटकिंग क्रिएट पैकेज है और उसके अंदर पैकेज का नाम लिख दिया और हम उसके अंदर डिपेंडेंसीज लिखते हैं। लाइक देखा होगा कि रॉस CPP और रॉस पाई वगैरह हम लिखते हैं, तो उसकी लाइक ज़रूरत नहीं होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि मान लो कि तुमने कुछ अलग सा बनाया, उसमें जब भी तुम मेक करते हो, कैटकिंग मेक करते हो या फिर कैटकिंग बिल्ड करते हो, जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो CMaker फाइल में स्टोर होती हैं एक्चुअली। ओके, CMaker.txt में स्टोर होती हैं। ओके, तो फिर ये हो जाता है ना कि कैटकिंग मेक करते हो, कैटकिंग बिल्ड करते हो, सो CMaker और पैकेज.xml जो भी वो हर टाइम अपडेट होती जाती है, जो भी डिपेंडेंसीज आती हैं वो उसमें वापस आ जाती हैं। ठीक, तो बस यही है कि अगर तुम बस एक पैकेज ये फोल्डर्स बना लो, और इस कमांड के बिना भी है ना, अगर तुम कैटकिंग मेक कर देते हो, लाइक मैं यहाँ पे कैटकिंग में कर रहा हूँ। ठीक, तो लाइक तुम देख सकते हो कि यहाँ पे C++ वाले डिटेक्ट कर, इसने C++ डिटेक्ट कर ली और उसे लाइक अंदर डाल रहा है ये भी। ठीक, और ये लाइक ये बन गया हमारे पास, इसमें बिल्ड वगैरह सब बन गए। और ये देखो तो मैं बता देता हूँ कि XYZ, हाँ ये देखो XYZ नाम से वर्कस्पेस बनाई थी मैंने, और उस वर्कस्पेस में बिल्ड, डबल और SRC ये तीनों बन गई हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर बताया था, जैसे SRC होती है उसके अंदर बिल्ड होता है, उसके अंदर डबल होता है, तो फिर ये बन गए। और SRC के अंदर हम लाइक पैकेजेस बनाते हैं, सब पैकेजेस बनती हैं। ठीक, तो यही था बेसिकली। ये अगर अपने हमें कैसे बिल्ड करना है, और क्रिएटिंग का पैकेज देख लिया हमने। ओके, तुम ऐसे भी कर सकते हो लाइक कैटकिंग क्रिएट पैकेज और फिर पैकेज का नाम लिख के फिर बाद में डिपेंडेंसीज लिख दो, ये भी एक प्रोसीजर है। इसके बिना भी अगर तुम सीधा डायरेक्टरी बना के उसको कैटकिंग में कर देते तो वो भी हो जाता है। ठीक, और फिर बाद में आ जाता है कि सोर्सिंग एक पैकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी लाइक मिस्टेक्स होती हैं बहुत बार। जैसे कि ये मान लो कि तुमने कोंडा तो लाइक सीखा होगा ना, लाइक एनाकोंडा में लाइक हमने ये बनाए थे पाइपलेट के पाइपलेट का जब काम किया था हमने, लेकिन सेपरेट ये बनाया था, सेपरेट एनवायरनमेंट बनाया था, और फिर उसमें हमने सब वो डाले थे लाइक जो भी डिपेंडेंसी, जो भी कोड है अपना, जो भी वर्जन चाहिए हमें, लाइक उसी एनाकोंडा वाले एनवायरनमेंट में लाइक हम बनाते हैं। जैसे जब हम वहाँ पे एक एनवायरनमेंट को हमें एक्टिवेट करना होता है, तो फिर इसी टाइप से हमें यहाँ पे लाइक इसको सोर्स करना होता है यहाँ पे रॉस में। ठीक, तो फिर बेसिकली सोर्स के लिए यही कमांड होता है कि सोर्स कर लो, और क्योंकि अभी देखो मैं ऑलरेडी XYZ में हूँ। ठीक, XYZ में ऑलरेडी मेरे पास ये डेवल नाम का ये फोल्डर बन रखा है, तो फिर डेवल और मैं टैब दबाते लाइक वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, डेवल में जाके setup.bash। ठीक, और लाइक तुम ये कमांड लिख दिया, इसका मतलब तुम इस वाले डायरेक्टरी को अब तुम ये कर रहे हो, इसे एक्टिवेट कर रहे हो। ठीक, जैसे हम एनाकोंडा में किसी एनवायरनमेंट को हमें एक्टिवेट करना होता है, एज सिंपल एज दैट, उसी जैसे हम यहाँ पे ना इसे एक्टिवेट कर
इसे लाइक सोर्स करते हैं, यहाँ पे सोर्स बोलते हैं हम, ठीक। लाइक ये हो गया। अब इसमें लाइक तुम भी कुछ भी बनाओगे तो फिर तुम्हें ये वाला एरर नहीं आएगा कि वो पैकेज नॉट फाउंड हुआ या फिर कुछ भी कि लॉन्च फाइल फाइंड नहीं हुई, ये पैकेज फाइंड नहीं हुआ। तो अगर वो पैकेज या फिर वो लॉन्च फाइल इस सोर्स इसमें ऑलरेडी है, ये जो डायरेक्टरी हमने अभी तक सोर्स की है, तो फिर वो एरर नहीं आएगा, ठीक। इसका मतलब ये होता है ना कि तुम बिना उसके अंदर गए तुम उसको लाइक सर्च करोगे तो लाइक सर्च लिस्ट में आएगा ही नहीं वो, तो फिर लाइक होता ही नहीं कुछ भी। ओके, तो ये यहाँ पे हम ये सीख लें कि लाइक कैसे ये बनाते हैं, सोर्स पैकेजेस बनाते हैं, ठीक। अब इसके बाद आता है गज़ीबो सिमुलेशन, ठीक। तो वीक 2 में लाइक हमने ये दिया था गज़ीबो सिमुलेशन वगैरह। हाँ, तो वीक 2 में लाइक हमने गज़ीबो सिमुलेशन वगैरह के बारे में बताया था। तो फिर ये तुमने देखा ही होगा कि ये वाला एनवायरनमेंट भी था उसमें। तो फिर लाइक बेसिकली ये देखो यहाँ पे जो टर्टल बॉट है, टर्टल बॉट पे लाइडर लगा हुआ था और लाइडर से ये मैप बना के बना रहा है, ठीक। तो गज़ीबो बेसिकली होता क्या है, देखो तुमने यूनिटी का नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं भी सुना है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। गज़ीबो ऐसा होता है कि वहाँ कि हमें लाइक कोई 3D में हमें लाइक कुछ विजुअलाइज करना हो या फिर लाइक कुछ भी 3D में लाइक उसे एनालाइज करना हो। लाइक सेंसर हमारे पास लाइक एक बॉट है, ओके, एक बॉट पे लाइक सेंसर लगा हुआ है, लाइडर लगा हुआ है। तो फिर लाइडर से जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी ऑब्स्टेकल आ रही है लाइडर के सामने, लाइक हम विजुअलाइज करने के लिए एक 3D एनवायरनमेंट तो होना चाहिए ना, तो लाइक वो गज़ीबो प्रोवाइड करता है, ओके। और वाइल ओनली गज़ीबो क्यों, क्योंकि गज़ीबो को सेपरेटली लाइक रॉस में बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। और गज़ीबो में ये होता है ना कि गज़ीबो की जो प्लगइन्स होती हैं ये वो बहुत सारी बन चुकी हैं, ओके, और वो हर टाइम एक अपडेट होती हैं। तो फिर ये होता है कि मान लो कि तुम्हें कोई सेंसर चाहिए, जैसे कोई भी लाइक जैसे राइडर सेंसर हो गया, कैमरा भी एक सेंसर होता है, ओके, और व्हील के जो मोटर होते हैं वो भी एक सेंसर हुआ, तो लाइक उनके भी प्लगइन्स होते हैं, ठीक। उन्हें लाइक तुम यूआरडीएफ फाइल में ऐड कर लो और फिर लाइक तुम इजीली गज़ीबो में यूज कर सकते हो। और ये जो भी रॉस का जो भी आर्किटेक्चर होता है वो लाइक इजीली सिमुलेट करके देख सकते हैं गज़ीबो में। गज़ीबो में लाइक बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि तुम विंड को भी लाइक सिमुलेट कर सकते हो और लाइक हवा की वजह से भी लाइक बॉट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी तुम एनालाइज कर सकते हो। और जैसे और लाइक बहुत चीजें होती हैं, जैसे वाटर को सिमुलेट कर लिया, बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक। ये हो गया गज़ीबो सिमुलेशन के बारे में। तो अभी तक के लिए किसी को कोई डाउट था तो भी बता दो एक बार। नहीं भैया, कोई डाउट नहीं। ठीक। और हाँ, तो लाइक मैं जो मैं अभी बता रहा था लाइक गज़ीबो प्लगइन, लाइक हम गज़ीबो को लाइक यूज कैसे करते हैं। मान लो कि तुमने सॉलिडवर्क्स या फिर किसी कहीं पे लाइक तुमने एक डमी सा एक बॉट डिजाइन कर दिया तुमने, लाइक एक बहुत डमी सा बॉट है। तो फिर मान लो कि एक प्लेट है और उस पर लाइक 2 व्हील्स लगे हुए हैं, ओके। अब तुम उसे जैसे वो लाइक क्रॉस में लेके आओगे तो फिर कुछ पता तो होना चाहिए कि लाइक उसमें मोटर है या नहीं है, क्या कहाँ पे मोटर लगी हुई है, मोटर का वेट क्या है, मोटर का बयास क्या है, मोटर में कितना फ्रिक्शन लग रहा है, कितना मैक्स टॉर्क जा सकता है मोटर का वगैरह वगैरह, सब तुम्हें लाइक चाहिए ही होगा, ठीक। तो फिर वो होता है गज़ीबो प्लगइन्स में। गज़ीबो प्लगइन्स इसीलिए लाइक बहुत सूटेबल होता है। लाइक ये वाला स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा तुमने कि ये जो लिख रखा है यूआरडीएफ वाले फाइल में लाइक मैं देखते हो कि XML के फॉर्मेट में लिखा होता है सब कुछ। तो फिर उसमें लाइक ये होता है कि रोबोट के बारे में दे दिया और रोबोट का डिस्क्रिप्शन हो गया, रोबोट का डिस्क्रिप्शन यूआर की लाइक पेरेंट लिंक, चाइल्ड लिंक क्या हुआ क्या है वो सब, ठीक। और फिर बाद में लाइक सेंसर लिंक, मान लो कि सेंसर में मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कैमरा है, ठीक। और तुमने लाइक कैमरा का लिंक भी दे दिया कि यहाँ पे लाइक ये मेरा हस्की है और हस्की के ऊपर ये वाला मैंने क्या कैमरा लिंक है। तो फिर लाइक तुमने ये कैमरा लिंक भी स्पेसिफाई कर दिया है ऊपर रोबोट डिस्क्रिप्शन में ही स्पेसिफाई, मतलब ये जो सेंसर टाइप जो हम देने वाले हैं उसके लाइक पहले ही तुमने लाइक उसे डिफाइन कर देना होता है, ठीक। लाइक डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन के बाद लाइक तुमने सेंसर कहाँ पे लगेगा उसकी एक लिंक भी दे दी है, ठीक। उसे सेंसर लिंक है वो, ठीक। अब तुमने लाइक सेंसर टाइप डिफाइन किया, अब नीचे आके तुमने लाइक सेंसर टाइप डिफाइन किया कि मेरा सेंसर टाइप है कैमरा और उसका नाम दे दूंगा मैं लाइक कैमरा 1 या फिर कैमरा 2, कुछ भी नाम दो तुम, ठीक। वो हो गया सेंसर। तो लाइक सेंसर का टाइप होता है, उसके बाद में लाइक सेंसर का कौन सा नाम हो गया। मतलब कि तुम्हारे पास मल्टीपल कैमरास होते हैं तो लाइक
उस केस में हम ना यही करते हैं कि लाइक कैमरा का अलग अलग नाम देते हैं, इसलिए यहाँ पे नेम भी देना होता है। और फिर लाइक सेंसर के पैरामीटर्स हो गए, लाइक कौन सा कैमरा यूज कर रहे हो वो तो डिपेंड करता है। लाइक सिर्फ कैमरा से तो नहीं काम चलेगा कि कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, क्या फोकल है कैमरा का, एक्सवाई में क्या है वगैरह वगैरह सब तो चाहिए होगी, तो लाइक वो कैमरा पैरामीटर्स में आ जाते हैं। ठीक, और फिर बाद में तुमने प्लग, अब ये तो हमारा ये हो गया कि हमने लाइक कैमरा क्या यूज किया, हमने कौन सा कैमरा यूज किया, हमने ये बता दिया। अब आता है कि हमने वो प्लगइन दे दी हमने, कि प्लगइन क्या दे रहे हैं हम, कि अब प्लगइन की बात हो गई कि हमें कैमरा दे दिया, तो फिर कैमरा की हमें प्लगइन देनी होती है। तो फिर ये कि कैमरा कंट्रोलर फाइल्स में तुमने एक कैमरा की प्लगइन दी थी, रॉस कैमरा। एक सेकेंड, एक मिनट, हाँ। तो लाइक तुम्हें कैमरा की प्लगइन स्पेसिफाई कर दी, लाइक हाँ मेरे ये हो गया कैमरा कंट्रोलर हो गया, और प्लगइन का नाम ये है, और उसमें लाइक वो कहाँ पे लोकेटेड है, लिब गज़ीबो, मतलब लिब गज़ीबो ये होगा कि लाइब्रेरी ऑफ गज़ीबो हुई, उसमें रॉस, उसमें लाइक कैमरा डॉट एस ओ। ठीक है, प्लगइन की बेसिकली ये वाली फाइल होती है, और ये फाइल प्री बिल्ट पहले से आती है गज़ीबो के साथ। जब तुम गज़ीबो इंस्टॉल करते हो ना, लाइक उसमें ये फाइल ऑलरेडी बन के आती है, लाइक बस तुम उसका फाइल लोकेशन दे दो यहाँ पे। और यहाँ पे लाइक पूरा स्टार्टिंग से होम से नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमने जब .src में गज़ीबो की लोकेशन हम ऑलरेडी दे चुके होते हैं। ठीक हो, तो फिर लाइक वो वहाँ से मान के चलता है कि जब भी तुम गज़ीबो लॉन्च करोगे तो फिर ये वाली डायरेक्टरी मुझे लेनी है, इसी वाली डायरेक्टरी से मुझे फॉरवर्ड करना है कि यहाँ पे गज़ीबो की सभी प्लगइन्स वगैरह जो भी है कि वो इसी डायरेक्टरी से होगी। तो फिर जब भी हमें कुछ लेना होगा तो लाइक उसी डायरेक्टरी में वो सर्च करेगा, उसे वहाँ से प्लगइन मिल जाएगी, कि वो सर्च करेगा कि योर लाइक गज़ीबो ros.so जो भी प्लगइन का नाम है वो वहाँ पे मिल जाएगी हमें। ठीक, और फिर बाद में तुम प्लगइन में भी लाइक चेंजेस कर सकते हो, और फिर उस प्लगइन्स के भी जो पैरामीटर्स होते हैं लाइक तुम भी चेंज करके फिर बाद में तुम रोबोट्स नाम से ये क्लोज करते हो, तो ये XML। तो इस टाइप से हमें गज़ीबो की जो भी प्लगइन डालनी होती है वो इस टाइप से हम डालते हैं। और मैं एक बार लाइक तुम्हें ये बता देता हूँ कि प्लगइन्स कहाँ से मिलती हैं। तो लाइक तुम गज़ीबो प्लगइन्स लिखोगे तो फिर ऊपर ही आ जाता है गज़ीबो प्लगइन रॉस में। गज़ीबो में प्लगइन लाइक 3 टाइप की होती हैं, तो मॉडल प्लगइन हो गई, सेंसर प्लगइन हो गई, विजुअल प्लगइन हो गई जो रेंडर के लिए काम आता है, सेंसर प्लगइन जो नॉर्मल सेंसर्स जो हम लगाते हैं, और मॉडल प्लगइन ये हो गई फिजिक्स। मॉडल में हम लाइक फिजिक्स क्या डालनी है, मतलब ये हो गया कि विंड इफेक्ट हो गया, कुछ खोलो को किसी और का इफेक्ट पड़ रहा है हमें, तो लाइक वो जो फिजिक्स हो गई, जैसे सेंसर की प्लगइन हो गई, सेंसर क्या बोल रहा हूँ मैं भी, फ्रिक्शन की प्लगइन हो गई, वो है ना कि फिजिक्स, वो भी फिजिक्स में आता है कि मॉडल कितना रफ है, वो सब तुम्हें लाइक देना होगा तो फिर वो मॉडल प्लगइन में आ जाता है। ओके, तो फिर बेसिकली अभी हम यहाँ पे सेंसर प्लगइन के बारे में बात करेंगे। तो फिर लाइक सेंसर प्लगइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। और फिर ओके, यहाँ पे देख लो ये कैमरा के बारे में दे रखा है। ओके, जैसे मैंने बताया था कि ये देखो कैमरा जॉइंट हमने डिफाइन किया, और ये फिक्सड जॉइंट है, और ये अपनी कैमरा लिंक के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन दे दी थी। ठीक, और लाइक कैमरा की कौन सी XYZ कैसे रोटेटेड रहेगा वो ये सब हमने दे दिया। ओके, कैमरा लिंक से स्पेसिफाई कर दिया हमने। ठीक, तो कैमरा लिंक जो था, कैमरा लिंक में कौन सा जॉइंट है हमारा, लाइक कौन सा जॉइंट देना, तो फिर लाइक वो हो गया अपना। अब आ गया ये हो गया प्लगइन वाली चीज। ठीक, तो फिर ये इसमें जो बेसिकली जो भी ऊपर हमने दिया था उसे वापस हम यहीं पे रखेंगे, जो हमने लाइक रोबोट डिस्क्रिप्शन के टाइम में जो हमने रखी थी वही। और जैसे यहाँ पे तो अभी तक यहाँ पे लिंक ही डिफाइन किया हमने, ये सब लिंक ही डिफाइन हुई है। हाँ, अब यहाँ पे प्लगइन डिफाइन यहाँ से हुई है, यहाँ से प्लगइन का वो की है, और यहाँ पे हो गया सेंसर के जो सेंसर का पैरामीटर जो था, एक सेकेंड, हाँ ये देखो जो सेंसर के जो पैरामीटर्स हैं और ये जो प्लगइन के पैरामीटर्स हैं ये यहाँ पे सेपरेटेड है। ये वाले प्रोवाइड जो सेंसर के पैरामीटर्स हैं, और नीचे जो हो गया ये प्लगइन के पैरामीटर्स हो गए हैं। ठीक, जो मैं बता रहा था कि लाइक विड्थ हो गई, हाइट हो गई, और कौन से फॉर्मेट में इमेज आ रही है, और कितना फार उसका ये हो गया, कितना नियर पॉइंट उसका कितना है, वो ये और ये कितने FPS पे आ रहा है, तो फिर लाइक ये हम दे देते हैं यहाँ पे। और सेंसर किस टाइप का होगा, सेंसर का नाम हो गया है ये
ओके, और ये होगा प्लगइन। प्लगइन में वो हुआ ना कि जब कैमरा तुमने यूज़ कर लिया, कैमरा में डिस्टॉर्शन होगा, तो फिर लाइक उस डिस्टॉर्शन के हिसाब से हमारी प्लगइन भी चेंज होनी चाहिए। तो फिर लाइक वो डिस्टॉर्शन हम यहाँ पे डाल देते हैं प्लगइन्स में। एक कैमरा इन्फो जो भी है, वो कैमरा इन्फो जो हम बताते हैं वो यहाँ पे डाल देते हैं हम। ठीक, ये हो गया। तो बेसिकली यही था गज़िबो के बारे, गज़िबो प्लगइन्स के बारे में। और तुम ये देख सकते हो ये फोटो में कि लाइक ये जो बॉट है, और बॉट से जो लाइडर डेटा आ रही है, ओके, और ये लाइडर डेटा को हम आरवीज पे विजुलाइज करते हैं। आरवीज क्या होता है? अब चलो आरवीज आ गया। आरवीज क्या है? आरवीज एक विजुलाइजेशन टूल है कि जो भी हमारे रॉस में चल रहा है, जो भी रॉस की टॉपिक्स आ रही है, जो भी रॉस की टॉपिक्स आ रही है, उस टॉपिक्स पे लाइक क्या पब्लिश हो रहा है, कैसे पब्लिश हो रहा है, वो उससे हमें लाइक विजुलाइज करना है। तो फिर उसे विजुलाइज करने के लिए हम आरवीज यूज करते हैं। जैसे ये देख सकते हो कि जो लाइडर की जो भी डाटा आ रही है, उस डाटा को हम यहाँ पे विजुलाइज करती है। हमें लाइक एक स्पेसिफिक कलर देती है, हमने लाइक कितना फार हो गया उससे भी लाइक हम कलर से डिनोट कर सकते हैं कुछ। ओके, ऐसे करके लाइक हम यहाँ पे आरवी से टॉपिक्स के साथ खेल सकते हैं मेनली, बेसिकली यही। तो या तो किसी को कोई डाउट है तो बता दो। किसी को डाउट है? हेलो, कोई बोल रहा था कुछ? हाँ ठीक है, तो फिर कंटिन्यू करता हूँ। ये होगा गज़िबो प्लगइन्स के बारे में। और अब आता है लाइक इसके बारे में लाइक ओपनसीवी का लाइक बहुत से सीखा होगा लाइक पाइपलेट में। तो फिर उसे कैसे हम क्रॉस में यूज़ करते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये होगा सीवी ब्रिज नाम से एक होता है। हाँ, एक नई ओके सीवी ब्रिज नाम से होता है। तो फिर उसमें ये जो ओपनसीवी जो हमारी इमेज आती है ना, वो एक्चुअली रॉस जिस टाइप से इमेज को रीड करता है उस फॉर्मेट में नहीं होती है ये इमेज। ठीक, तो रॉस का जो इमेज का मैसेज टाइप है वो अलग होता है ओपनसीवी वाली इमेज के मैसेज टाइप से डाटा। ओके, तो फिर इन दोनों को जोड़ने के लिए बेसिकली हम सीवी ब्रिज का यूज़ करते हैं, ताकि वो रॉस इमेज जो फॉर्मेट होता है उस मैसेज फॉर्मेट को ओपनसीवी जो रीडेबल फॉर्मेट होता है उसमें लाइक चेंज करते हैं। ठीक, तो फिर बस यही है कि लाइक इंपोर्ट सीवी ब्रिज से सीवी ब्रिज इंपोर्ट कर लो, और सीवी ब्रिज कॉल करके फ्रॉम इमेज जो भी मैसेज आता है, मतलब ये रॉस इमेज मैसेज की बात कर रही है यहाँ पे, और उसको लाइक हमें CV2 इमेज में कन्वर्ट करना है। तो फिर लाइक यहाँ पे ये देते हैं जो इमेज मैसेज, जो भी टॉपिक को हम जो भी टॉपिक को हम सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद हम उसकी डाटा आती है। ठीक, अगर तुमने नोट लिखना देखा होगा तो फिर लाइक उसमें जो उसकी डाटा आती है, उस डाटा को लाइक हम यहाँ पे दे देते हैं और उसको लाइक रिजल्ट एनकोडिंग पास थ्रू कर देते हैं। तो फिर हमें लाइक जो भी अब आउटपुट आएगी वो CV इमेज हो गई हमारी। ठीक, बस ऐसे यूज़ करते हैं सिंपल से। और CV इमेज यूज़ करने के लिए लाइक पहले हमें क्या करना होता है, तो फिर एक बार ये बता देता हूँ कि हाँ, ये वाला जो भी है, एक सेकेंड मैंने पे देख लेता हूँ। देखो CV ब्रिज रॉस लिखोगे, देखो यहाँ पे CV ब्रिज के बारे में बताया भी रखा है रॉस, और उसके होम पेज में। और यहाँ पे तो तुम किट पे जाओगे तो इसकी किट की सोर्स मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे CV ब्रिज के पैकेजेस बन रखे हैं। ठीक, तो फिर बेसिकली यही करना है, इसे कॉपी करना है। और मैंने भी ये बना रखी थी पैकेज, तो मैं इसके CD SRC में लाता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे गिट क्लोन कर देता हूँ, Shift V। ओके, गिट क्लोन गई। अब मैं वापस CD डॉट करके
मैंने एक गलती कर दी थी वैसे यहाँ पे, तुमने देखा शायद नोटिस किया हो तो कि ये जो वर्जन था यहाँ पे रोलिंग दे रखा है और ये रॉस 2 के लिए है बेसिकली। और मैं भी रॉस नोटिक पे नहीं हूँ, मैं मेलोडिक पे हूँ, तो मैं लाइक मेलोडिक का ये ले लूँगा और मैं लाइक इसे कॉपी कर देता हूँ। cdsrc git clone ओके cd डॉट अब यहाँ पे हमें एक बार लाइक हमें उस किसी फाइल को लाइक हमने क्लोन कर दी। क्लोन करने के बाद हमें उसे हर टाइम कैटकिन मेक करना होता है, कैटकिन मेक या फिर कैटकिन बिल्ड होता है। फिर अभी संचित ने बताया था कि बिल्ड या फिर मेक करने के लिए क्या क्या होता है, लाइक हम जो भी फाइल्स है उस फोल्डर में लाइक वो सभी एक बार रन हो जाती हैं, ठीक। तो फिर लाइक ये जरूरी होता है कि तो कभी भी तुम लाइक क्लोन करो तो फिर उसे कैटकिन मेक या फिर कैटकिन बिल्ड पक्का करो, ठीक। तो फिर ये होता है कैटकिन मेक। अगर बिना कैटकिन मेक या कैटकिन बिल्ड करे और वो फाइल के बारे में पता नहीं चलेगा, ठीक। तो फिर यहाँ पे लाइक मेरे पास प्लेन सी में का एरर आ रहा है क्योंकि मैं अभी तक लाइक रॉस मेलोडिक पे हूँ, तो फिर शायद मैंने कुछ गलती कर दिया रखी हो। और यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि पाइथन 2 का वर्जन यहाँ पे उन्होंने चेंज कर रखा था, और क्योंकि मैं पाइथन 2 पे हूँ अभी और पाइथन 3 पे चलता है उनका, ठीक। और तो फिर बेसिकली ये हो गया सीवी ब्रिज के बारे में। और कैटकिन मेक का नाम है लेकिन ज़रूरी होता है हर टाइम, ठीक। और किसी को कोई डाउट है तो एक बार ये बता दूँ। और उसके बाद में लाइक मैं एक बार ये भी बता दूंगा कि है ना, जो जी मैपिंग का जो पैकेज था और लाइक बाकी के जो भी जैसे भी पैकेजेस होते हैं रॉस में, लेकिन यूज़ कैसे करते हैं एक बार। कोई कुछ बता दो, ठीक है। एक बार मैं लाइक ये बता देता हूँ कि तुमने ये यहाँ पे गए हो पे ये जो जी मैपिंग वाला पैकेज है नेट रॉस के डॉक्यूमेंट वाले में विकी, तो फिर यहाँ पे तुम ये देख सकते हो कि ये जो भी पैरामीटर्स यहाँ पे दे रखे हैं, ओके, इन पैरामीटर्स को हमें लाइक पर्टिकुलर टाइम चेंज करना रहता है। तो फिर बेसिकली ये देखो कि यहाँ पे जो बेस फ्रेम दे रखा है, बेस फ्रेम बेस लिंक, ये हर मॉडल के लिए चेंज होती है। तो फिर लाइक इसे हमें रीमैप करना होता है हर टाइम। और ये मैप फ्रेम हो गई, ये ओडोम फ्रेम हो गई, बस ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इन्हें लाइक चेंज करना होता है। बेसिकली जो बाकी जो भी वैल्यू टाइप है उन्हें लाइक चेंज करने की जरूरत नहीं है, ओके। और बस यही था। और ये भी देख सकते हो कि जो यहाँ पे, हाँ ये बता देता हूँ कि यहाँ पे लोग इनका जो सोर्स कोड है, तो इनके सोर्स कोड में जाके और ये जी मैपिंग में आके और लॉन्च वाले में अगर जाते हो तो फिर यहाँ पे देखो ये जो लॉन्च डॉट लॉन्च है यहाँ पे, ठीक। इसमें से हम देख सकते हो ये जो जी मैप वाला है, ओके। मैं एक बार ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये लॉन्च फाइल बता क्या रहा है, ठीक। और तो ये लॉन्च फाइल होगी और लॉन्च फाइल में ये जो पैरामीटर है हमने ये सिमुलेशन टाइम ट्रू कर दिया हमने इसे। और ये जो हम जी मैपिंग वाले पैकेज को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे होगा बेसिकली रीमैप। ये होगा रीमैप ये होगा कि जब भी हम ये पैकेज को कॉल करते हैं, इस पैकेज को कॉल करने पे जो भी ये आता है ना, पैकेज को कॉल करने पे जो भी आउटपुट आता है, जो टॉपिक पे पब्लिश होता है वो स्कैन पे होता है एक्चुअली। तो हमने ये कर दिया, स्कैन को रीमैप कर दिया लेजर स्कैन बेस स्कैन पे, सॉरी, कि हमने जो भी स्कैन पे जो टॉपिक आ रही थी हमने उससे लेजर बेस स्कैन पे हम पब्लिश करवाना चाह रहे हैं अब हम। तो बस ये हुआ कि तुम जिस टॉपिक पे तुम चाहते हो उस टॉपिक के लिए तुम पब्लिश करा लो इसे। तो ये हो गया रीमैप, बाकी के सब पैरामीटर्स हैं, ठीक। तो फिर यहाँ पे इन्होंने ये जो फ्रेम्स वाले पैरामीटर है, इन्होंने फ्रेम वाले पैरामीटर नहीं दिए हैं, ठीक। तो फिर वो एक बार देखना होता है कि यहाँ से देख लो, तो यहाँ से देखना होता है कि ये जो पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं उनमें ये देख लो कि ओडम फ्रेम है, और ये बेस फ्रेम हो गई हमारी, मैप फ्रेम हो गई, ये बेस फ्रेम हो गई। बस इनकी ये जो है ये हमें अकॉर्डिंगली रीमैप चेंज करनी होती है, ठीक।
पैरामीटर्स को हमें चेंज करना होता है। मैं वो ये बता देता हूँ कि ये देख सकते हो तुम कि यहाँ पे देखो मैंने चेंज किया है पैरामीटर बेस फ्रेम को, पैरामीटर ओडम फ्रेम को, लेकिन मैंने चेंज किया है कि इस वैल्यू से आर्गुमेंट बेस फ्रेम क्या था मेरा, ये वाला जो भी बेस फ्रेम है मैंने उसे लाइक इसे चेंज किया बेस फ्रेम को, ओडम फ्रेम को भी लाइक चेंज किया है। ठीक, तो ऐसे लाइक चेंज करना होता है और लाइक तुम्हें लाइक थोड़ा स्टडी करके यहाँ से रॉस को लाइक कितना चीज़ स्टडी कर पाओ, तो फिर वहाँ वो देखना होगा ना कि तुम यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो कि बेस फ्रेम हो गई, यहाँ से ये ओडम फ्रेम हो गई, और जो भी हमें फ्रेम चाहिए उस फ्रेम को लाइक अपने अकॉर्डिंगली हम मॉडिफाई कर रहे हैं। बस यही था। और लाइक किसी को कोई डाउट है? भैया मेरे को एक दूसरे चीज से रिलेटेड डाउट है। जैसे कि जो टर्टलबॉट 3 पैकेज है ना, वो मैंने sudo apt get वाले से किया है, तो वो मेरे उसमें कैटकिन वर्कस्पेस में दिखता नहीं है उसके फोल्डर्स, बट वो यूज हो पाता है। हाँ नहीं दिखता है क्योंकि जो sudo से हम इंस्टॉल करते हैं ना वो बाइनरी इंस्टॉलेशन होता है, वो सोर्स इंस्टॉलेशन नहीं होता है। ओके, और बाइनरी इंस्टॉलेशन ऑप्ट नोटिक में जाके स्टोर होता है। जैसे मैं तुम्हें एक बार ये बता ही देता हूँ, यहाँ पे देखो कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर में जा रहा हूँ और ऑप्ट नोटिक में होता है, मतलब ऑप्ट रॉस, मैं मेलोडिक वर्जन यूज करता हूँ तो मेरे लाइक मेलोडिक में है, ऑप्ट रॉस मेलोडिक में, और यहाँ पे स्टोर हो जाती है। देखो यहाँ पे लाइब्रेरीज में जाओगे तो ये सभी जो पैकेजेस हैं वो सब sudo से इंस्टॉल कर रखे हुए हैं। ठीक, यहाँ से तुम ये देख सकते हो मैंने जी मैपिंग वाला भी कभी बार sudo से इंस्टॉल किया था, जहाँ स्टेट पब्लिक से भी मैंने sudo से इंस्टॉल किया था। ओके, तो यहाँ पे देखो क्योंकि बेसिकली इनके 2 नोड्स ही हैं तो फिर है ना, इन्हें ये बाइनरी इंस्टॉलेशन से हुआ है। ठीक, इनको एक्चुअली अगर तुम चाहो तो लेकिन सोर्स से भी ये कर सकते हो, सोर्स से भी बिल्ड कर सकते हो कैटकिन में करके हर बार। बस ये डिफरेंस होता है इनके बारे सोर्स इंस्टॉलेशन और बाइनरी इंस्टॉलेशन से। ओके भैया, ठीक है। और किसी को डाउट्स हैं? ओके, तो फिर मीटिंग की रिकॉर्डिंग बंद।